Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your on YouTube channel English with हरिओम सर. डियर स्टूडेंट, हम एक सीरीज के अंदर वर्ड्सवर्थ की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम सेलेक्टेड पोइम को डिस्कस कर रहे हैं. टुडे वी शैल डिस्कस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोइम 3 years she grew in sun and shower, or another title of this poem, The Education of Nature. Dear student, you know very well William Wordsworth was a poet of nature. He was a worshipper of nature. Wordsworth wrote some poems whose subject matter was Lucy. Who this Lucy was is still debatable. Whosoever she may be, the poems make a fine reading. 3 years she grew in sun and shower is regarded to be the best among Lucy poems. Wordsworth composed it in Germany in 1799, and this poem was published in 1800 in second edition of lyrical ballads. Dear student, आपको पता है कि lyrical ballad is the masterpiece composed by the collaboration of William Wordsworth and S.T. Coleridge. This collection of poems that was in lyrical ballads was written in 1798. Okay, published in 1798 anonymously. कोई नाम नहीं था इसमें. 1800 में बाई नेम पब्लिश्ड हुआ ये विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज. इट इज कंसीडर्ड it is the piece by which we consider the beginning of romantic period. Okay, the noteworthy feature of this lyric is that nature, who nurtures Lucy, is herself narrating the story of Lucy. William Wordsworth's firm belief was that a man can be brought up by nature better than by man. Rousseau's call back to nature seems to have found its best exponent in Wordsworth. Okay, dear student, it is the introduction of this poem. Now, let's come with me and discuss this poem line by line. 3 years she grew in sun and shower. Dear student, she का मीन्स है यहाँ पर लूसी. 3 वर्षों तक लूसी ने 3 वर्ष प्रकृति की गोद में रहकर गुजारे. 3 years she grew in sun and shower. सन में सूर्य, सोवर में हल्की वर्षा, यानी प्रकृति की छत्र छाया में रहकर के 3 वर्ष तक लूसी बड़ी हुई. Then nature said, it means at the end of 3 years, 3 वर्ष के अंत में प्रकृति ने सोचा, a lovelier flower on earth was never shown. इतना प्यारा पुष्प. नेचर इज कंपेयरिंग लूसी टू द फ्लावर. फूल से तुलना कर रही है. प्रकृति कहती है कि इतना सुंदर पुष्प पृथ्वी पर पहले कभी नहीं होगा. अर्थात लूसी जैसी सुंदर कुसुम पुष्प के समान इस धरती पर और कहीं नहीं है. दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक. प्रकृति ने संकल्प लिया कि वह लूसी को गोद लेगी. सी शैल बी माइन. वह लूसी प्रकृति की अपनी होगी. एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन.
और अपने हिसाब से उसका लालन पालन करेगी। अंत में उसे अपने मन की युवती बनाएगी। माई सेल बिल्ट टू माई डार्लिंग बी। प्रकृति कहती है माई सेल बिल्ट टू माई डार्लिंग बी, यह लूसी मेरी बहुत प्रिय होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, विद बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल, और यह लूसी प्राकृतिक नियमों से और नियंत्रण से पूरी तरह से परिचित होगी। द गर्ल, बच्ची, इन रॉक्स एंड प्लेन, चट्टानों में जाएगी, मैदानों में जाएगी। इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर विचरण करेगी और स्वर्ग में विचरण करेगी। इन ग्लेड एंड बोवर, प्रशंसा से ये कुंजों में घूमेगी। सेल फील एंड ओवरसिंग पार, और ये एक अदृश्य शक्ति को महसूस करेगी। टू काइंडल और रेस्ट्रेन, जो इसको नियंत्रित करेगी, जो इसके नियंत्रित करेगी और अस्थिर विचारों को रोकती रहेगी। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से, वेयर सो एवर लूसी हैपन्स टू गो, in the hilly areas and the plains, on the earth or in the sky, in some open space or the grove of this forest, nature will always be supervising her, kindling her energies, inspiring her with noble thoughts, and checking her wayward and ignoble impulses. Nature will control his uncontrolled thoughts. Okay dear student, आगे मूव करते हैं। She shall be sportive as the fawn, लूसी इतनी फुर्तीवान होगी जैसे हिरन का बच्चा होता है। That wild with glee across the lawn, जो हिरन का बच्चा खुशी से फुदकता रहता है, कूदता रहता है हरे भरे मैदानों में। लॉन मीन्स मैदान। और अब द माउंटेन स्प्रिंग, पर्वती झरनों पर। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंट थिंग्स। लूसी लूसी अनेक वस्तुओं की सुगंध के लिए, प्रकृति की अनेक वस्तुओं की सुगंध लूसी के लिए होगी। हर्ष, हर्ष मीन्स उसकी होगी। शैल बी द ब्रीथिंग बाम, अनेक वस्तुओं की सुगंध प्रकृति में लूसी के लिए होगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंसेंट थिंग्स, प्रकृति के निर्जीव पदार्थों, पर्वत, पहाड़ियां की पूर्ण शांति का आनंद भी लूसी उठाया करेगी। इनसेंसेट थिंग्स जो होती हैं, इनको कहते हैं खामोश, जड़ या निर्जीव वस्तुएं। म्यूट जो शांत रहती हैं, साइलेंस रहती हैं। ओके, इसको कहते हैं हम। काम मीन्स होता है विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट नॉइज की चीजें। दोबारा देखें। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, लूसी एक फुर्तीवान होगी, ऐसे आनंदित रहेगी जैसे हिरन का बच्चा रहता है, जो खुशी से दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, हरे भरे मैदानों पर उछलता कूदता रहता है, घास के मैदानों पर। और अब द माउंटेन स्प्रिंग, पर्वती झरनों पर। एंड हर्ट शैल बी द ब्रीथिंग बाम, और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, सुगंध वाली वस्तुओं की सुगंध लूसी के लिए होगी। और प्रकृति के निर्जीव पदार्थ की पूर्ण शांति का आनंद भी लूसी उठाया करेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड देयर स्टेट शैल लाइन, ये उड़ते हुए बादल देयर स्टेट शैल लैंड, उसको सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे। टू हर, फॉर हर द विल्लो बैंड, बिल्लो के वृक्ष झुक जाया करेंगे, यानी झुके हुए वृक्षों से, बिल्लो के वृक्ष के झुक करके। जो प्रकृति में विलो के वृक्ष होते हैं डियर स्टूडेंट, वो झुके होते हैं, उनसे लूसी सीखेगी नम्रता, नम्रता के भाव को महत्व देगी। नॉर सेल सी फेल टू सी, वह कभी भी नहीं भूलेगी,
कभी नहीं भूलेगी क्या, इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों में मुक्त घूमने से, जिन्हें भयप्रद माना जाता है, लूसी को अपने व्यक्तित्व के संवारने का अवसर मिलेगा उनसे। जो तूफान होते हैं जिन्हें भय का प्रतीक माना जाता है, लूसी के लिए कभी भी लूसी नहीं भूलेगी, वो उनसे एक व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। ग्रेस दैट सेल माउट द मेडन्स फॉर्म बाई साइलेंट सिंपैथी। लूसी को अपने व्यक्तित्व को संवारने का अवसर मिलेगा। प्रकृति अपने शांत प्रभाव से भी लूसी को कम प्रभावित नहीं करेगी। ग्रेस दैट शेल माउट द मेडन्स फॉर्म, मेडन्स फॉर्म का मतलब होता है अनमैरिड बॉडी, अविवाहित कुंवारा शरीर। गुप्त रूप से प्रकृति के द्वारा उसे सुंदर कुंवारा शरीर प्रदान किया जाएगा। द स्टार, जब वो युवा होगी, द स्टार ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, अर्धरात्रि के तारे उसको प्रिय लगेंगे। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर, वह अपने कानों से सुनेगी। इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, बहुत सारे गुप्त स्थानों के बारे में वह अपने कानों से सुनेगी। एकांत स्तनों पर बहते हुए नालों की, वेयर रिवेल्यूट्स डांस, छोटी छोटी नदियां जहाँ नृत्य करती हैं। देर बेवार्ड राउंड, जब छोटी छोटी नदियां बहती हैं तो उसमें गोल गोल रास्ते बन जाते हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, उन पानी से निकलती हुई कलकल की आवाज उसको सुंदरता प्रदान करेगी। सेल पास इन टू हर फेसिस, वो उसके चेहरे को, ये आवाज है उसके चेहरे को कांति एवं आभा प्रदान करेंगी। यानी डियर स्टूडेंट, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से नेचर बिलीव्स दैट द मर्मरिंग साउंड ऑफ स्ट्रीम्स, स्मॉल रिवर्स, रिवॉल्यूट्स shall unfailingly impart charm and grace to the Lucy's face. Lucy's face. प्रकृति का विश्वास है कि नली नालों की मरमर ध्वनि लूसी के चेहरे को कांति एवं आभा प्रदान करेंगी। वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, वाइटल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आनंद, प्रसन्नतापूर्ण, शांतिवर्धक, प्रसन्नता देने वाली भावनाएं, जीवित प्रसन्नता देने वाली भावनाएं। सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, उससे एक आकर्षक ऊंचाई प्रदान करेंगी। शारीरिक के मानसिक संरचना उसकी खूब शानदार होगी। हर वर्जिन भूषण स्वेल, तब वह गौरवमयी महिला में परिवर्तित हो लेगी। हर वर्जिन भूषण स्वेल, वर्जिन भूषण स्वेल, जब उसका यानी सी विल ग्रो इन हर चेस्ट। ओके, सो वह एक गौरवमयी महिला में परिवर्तित हो लेगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, जब मैं लूसी को ऐसे विचार दूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल, जब वह यानी लूसी और प्रकृति एक साथ इस प्रसन्नमयी एक घाटी में रह रहे होंगे, जब मैं उसे विचार दूंगी। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डियर स्टूडेंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर Lucy shall be having joyful feelings that will let her grow to a majestic structure. She will be turned into a majestic lady. Her bosom will be filled with utmost joy. When Lucy starts living with nature in the valley, which makes the onlooker happy. She with nature in the valley, which makes the onlooker happy, she will fill Lucy's heart with such noble and happy thoughts as are necessary for the graceful existence. अपने व्यक्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए जो विचार आवश्यक होते हैं एक युवा, एक युवती के लिए, वो वाला नैतिक ज्ञान will be provided, will be imparted by our teacher Lucy. लूसी के द्वारा दिया जाएगा। Through these lines, William Wordsworth wants to convey message. Nature is not only mother but also a teacher. Okay, dear student.
नेक्स्ट, दस नेचर स्पेक, इस प्रकार जैसा प्रकृति ने कहा, द वर्क वॉज डन, कार्य वैसा ही हुआ। हाउ सून माई लूसी रेस वाज रन, मेरी लूसी किस तरह दौड़ती थी। सी डाइड, वह खत्म हो गई। एंड लेफ्ट टू मी, मुझे छोड़ गई। दिस हीथ, दिस हीथ डियर स्टूडेंट, हीथ का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड लैंड, इस बंजर भूमि पर। दिस काम, इस शांत भूमि पर। एंड क्वाइट सीन, इन शांत दृश्यों के बीच में। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, यादें जो कभी उसके साथ रही हैं। नेवर मोर विल बी, और उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा मेरा मतलब विलाप है, यानी नेचर यहाँ पर विलाप कर रही है उसकी अनटाइमली डेथ पर लूसी की, कि किस तरह से लूसी इन्हीं प्रकृति के बीच में खेला करती थी। आज उसकी यादें हैं, आज उसकी यादें हैं। डियर स्टूडेंट, इन सिंपल लैंग्वेज वी वांट टू से, नेचर स्पोक टू हरसेल्फ whatsoever she wished the work had done. Lucy completed the journey of her life too soon. Too soon. She breathed her last. Lucy left to nature, the heat, complete the silent scene, the memory of the past, the difference to the nature, and the sad thought that she can never be seen now. लूसी से प्रकृति के लिए, लूसी से प्रकृति के लिए यह बंजर भूमि, पूर्ण शांत दृश्य, अतीत की स्मृति तथा जीवन में बहुत बड़ा अंतर छोड़ गई लूसी की मृत्यु। लूसी ऐसा दुखद संदेश भी छोड़ गई कि अब वह कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। एंड शी विल नेवर मोर विल बी, अब वह कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट, this is the poem, very beautiful poem. 3 years she grew in shower. In shower. Okay. Another title of this, education. Hmm? The education of nature. These are very beautiful lines of Wordsworth regarding Lucy. ओके, लूसी से रिगार्डिंग थी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम रही इसकी। आप एक या दो बार इसको वीडियो को देखें तो यू विल रिसाइट, यू विल लर्न ईच एंड एवरी लाइन ईजली एंड अंडरस्टैंडेबल। कभी भी टीजीटी पीजीटी में कोई सी भी लाइन आएगी, मैनी लाइन्स हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन वेरियस एग्जामिनेशन एंड यू विल कंप्लीट ईजली। आपको कोई भी शायद परेशानी नहीं होगी डियर स्टूडेंट। So one thing's more important point is this. This poem was composed in 1799 and it was published in 1800 in the second edition of Lyrical Ballads. Lyrical Ballads. Who composed Lyrical Ballads? Dear student, your answer should be Lyrical Ballads was composed by two poets. The first one is William Wordsworth and second one is एस.टी. कोलरेज। एंड व्हाट वाज लिरिकल बैलेट्स? लिरिकल बैलेट क्या था? लिरिकल बैलेट्स वाज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन लिरिकल बैलेट्स? योर आंसर शुड बी देयर वर 23 poems in lyrical ballads. Next question, how many poems were dedicated by S.T. Coleridge? Your answer should be there were 4 poems which were contributed by S.T. Coleridge. How many poems were contributed by William Wordsworth? 19 poems were contributed by William Wordsworth. The next question, what was the name of the first poem of lyrical ballads? The Ancient Mariner, composed by S.T. Coleridge, was the first poem of lyrical ballads. And what is the last poem of the lyrical ballads? Tintin Abbey was the last poem of lyrical ballads which was composed by William Wordsworth. Okay, dear student, ये कुछ क्वेश्चंस थे। एंड सेकेंड एडिशन क्या था? 1800
Preface to Lyrical Ballads was the full title of that work. Thanks for watching this video.